Meeting is called to order. Hello, everyone. A very, very good evening. I hope you all are doing great. I would first like to request President Rotarian Goel to confirm the minutes of the meeting of the last meeting held on 14th January. Thank you, Rotarian Ziga. The previous meeting, which was held on 14th January Sunday, the minutes were circulated among members, and we have not received any comments or objection. So I presume that the members have approved the minutes. So I confirm the minutes of the previous meeting. Thank you very much. And as we see, our speakers for the day have just joined in. I'll just give them a minute to start out. Before that, I would request Rotarian Goel to just give a brief introduction about our speakers for the day, who are living liver recipient Mr. P.K. Ratan and living liver donor Rotarian Rupa Arora. They are joining us from Chandigarh. And while Rotarian Rupa Arora is our honorary member because she is a organ donor. Mr. P.K. Ratan is joining today to give us a talk on the challenges experienced by him in the organ transplant process. So I request Rotarian Goel to just please give a brief introduction about our speakers. Yeah. I would like to give first the introduction of Mr. P.K. Ratan. Mr. P.K. Ratan is working as Senior Accounts Officer with Engineering Department of Chandigarh Administration, and being living proof, and he has received, because he had a problem with the liver, and he received the liver from his wife, Rotarian Rupa Arora. Rotarian Rupa Arora is working as government school teacher, TGT, in Government High School of Chandigarh Administration. She donated part of her liver to her husband, Mr. P.K. Ratan, in 2011 and saved his life. So today, both of them are here. They are there? They have joined? I think they have not yet. They are with us. They are here, right here. I'll just ask them to unmute. Yeah. Please unmute Ratanji and Rupaji. Are they there now? They are already in the meeting since the very time I mentioned. They're just turning on their camera, I believe. Asked to Please start. unmute and switch on your video, Mr. P.K. Ratan and Rupa Arora ji. Okay, I have just received a message. Let me check what it is. Okay, she says she's facing some network issue. Okay, so no she's problem. joining from her mobile. No problem. So when they will join again, till that time, I would like to give some informations. I would like to share the informations. We, on the request of our one of the, not only the member, the charter treasurer in the last meeting, that all the members of our club and if possible, the families should donate, place to donate their organs. And we have put it on our group. And I have to inform you that till now, we have received confirmation of 23 numbers, out of which 4 were spouse, 4 are spouse. So I can say effectively only 19 members have confirmed that they have pledged to donate. So once again, I request on behalf of Rotary Club of Organ Donation International, if you have already pledged to donate, please add your name or message me or to any of our Rotarian Ritika Gupta, the secretary, or any of the office bearers, or please pledge to donate. It will take only 2 minutes. Just go on the that QR code, scan it, put your telephone number if it is linked with the Aadhaar card. And I'm very happy to inform that the first time, very recently, Noto has linked now this organ donation, pledge to organ donation with the Aadhaar card, which we were demanding from the very first meeting, that is more than 7 years. And I'm sure Rotarian Avnash Bhargav, he's here. He knows that the meeting which we held at Mathura
at Ma Saraswati Hostel when with the collaboration or under Giants Group of Mathura West when his wife Miss Deepa Bhargav was the president. And that time, from that time, we were asking that this should be linked with Aadhaar card. And I am very happy that now it is linked with Aadhaar card. And when Rupa Arora ji and Ratan ji, if you are ready, yes, you have to close I'm- one of your. I'm Please removing close them one of from your the other devices. device. Yes, I'm removing them. I wanted to make sure if I remove the right device. Remove. Yes. Can I remove? I hope I'm removing the right device. I'm not. Okay, I'll remove the other one. एक डिवाइस को हाँ hello now it is okay I think. I removed one device. Yes. Rotarian Rupa Arora ji, can you hear us? Yes, sir. वेरी गुड. और रतन जी आप भी सुन सकते हैं, तो आप जी में से सर। जैसे भी बोलना चाहें अपना वो बताइए एक्सपीरियंस, क्योंकि हम अभी इस उसमें एवरी टाइम व्हाट वी आर डूइंग कि हर एक से एक्सपीरियंस ले रहे हैं जिन्होंने लिया है लिविंग मार्क, तो आपसे ले रहे हैं. हम चाहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि क्या क्या आपको चैलेंज आए, किस तरह आपको ये प्रॉब्लम हुई. रतन जी पहले आप बताएं, और आपको कब पता चला, उसके बाद किस तरह आपके ने डिसाइड किया, और स्पेशली आपकी वाइफ ने डिसाइड किया टू डोनेट. उस वक्त आपके मन की क्या स्थिति थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, वो जरा विस्तार से थोड़ा बताएं. जी सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर. तो मेरा 2010 में एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत चल रहा था लिवर का. तो उस वक्त मतलब ऑलमोस्ट डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था कि देर इज ओनली वन अल्टरनेटिव अगर आप सरवाइव करना चाहते हो. मतलब हालत इतनी खराब थी कि कोई मेडिकेशन से फर्दर कोई होप ही नहीं थी रहेगी कि ऐसा कहीं ना कहीं कोई सर्वाइवल का स्कोप रहा हो. तो ऐसे में मतलब अगर मैं कंडीशन बताऊं अपनी, तो मेरी बहुत मिजरेबल कंडीशन थी. मतलब जैसे गम ब्लीडिंग वो सारा जो क्लॉटिंग टाइम है वो सारा अपसेट हो गया था. तो सारी जो नॉर्मल ऐसी सिचुएशन में जैसे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की वो था, मतलब हालत इतनी खराब हो गई थी कि नॉर्मल लाइफ लीड करना बहुत मुश्किल था. और सेकेंडली ये था कि वी लॉस्ट होप कि अब ये सर्वाइवल कहीं किसी तरह पॉसिबल होगी, क्योंकि अगर ये बात अगर 2010 में मैं कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 14 साल पुरानी है. उस वक्त हमारे कंट्री में, या मैं स्पेसिफिकली अगर कहूँ चंडीगढ़ में, मतलब इतना ट्रांसप्लांट का स्कोप नहीं था. तो ना ही इतना अवेयरनेस का था, ना ही हमें पता था भी. अब जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि द ओनली ऑल्टरनेटिव इज ट्रांसप्लांट, तो हमें उस वक्त सोचने में डर लगता था भी ट्रांसप्लांट अगर है तो मतलब मन में क्यूरियोसिटी थी भी कैसे होगा, क्या कहाँ से अगर डोनर की डॉक्टर बात कर रहे हैं तो वो अरेंज कैसे होगा. तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत वो मेंटली मेरे को प्रिपेयर करने लगे थे भी आपको कहीं ना कहीं ये ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा. तो देन फिर मैंने पूछा भी बताओ आप कहाँ से हम परस्यू कर सकते हैं. वो कहते हैं आप अपना खुद सर्च कर लो. तो सर ऐसे में प्रॉब्लम, मतलब जब एक इतना बड़ा चैलेंज, और वो भी जिंदा रहने के लिए, मतलब मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मैं और मेरी फैमिली रोज मरती थी. मतलब डेथ आप कह लो इतना अप्रोचिंग उसमें थी कि ऐसा लगता था भी कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में तो मतलब अब मेरी बेटी थी, मुझे ऐसे लगना लग रहा था भी कहीं ना कहीं ये कभी भी अनफॉर्चुनेट कुछ भी हो सकता है. तो बस स्टेक पे जब लाइफ लग गई तो ऐसा लगा भी कि कोई ना कोई परमात्मा को रोज हमने प्रेयर्स करनी भी, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो पाए भी जिसमें हम अपने आप को सर्वाइव कर पाए. तो ऐसे में बस सर्च करते करते मैं गूगल सर्च करना शुरू किया. उस वक्त प्रिमिटिव वे में हम जैसे स्टार्टिंग में इतना ये गूगल सर्च वगैरह भी इतना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था. तो हमने देखा तो बहुत सारे पेशेंट मुझे लगा. गुड़गांव उनकी डॉक्टर जो लिवर ट्रांसप्लांट जिन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट किया, डॉक्टर एस स्वायन, तो उनकी वेबसाइट जैसे ढूंढते ढूंढते सर्च किया तो कुछ पेशेंट की मुझे आईडी पता चल गई
कुछ पेशेंट के कंटेक्ट डिटेल्स पता चल गई। तो मैंने उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया भी ऐसे क्या ये पॉसिबल है। तो पेशेंट ने फिर अपनी थोड़ी लाइफ स्टोरी जो है वो शेयर करना शुरू कर दी भी हाँ ऐसे ऐसे करके हमें भी था, हमारी बेटी ने डोनेट किया, तो आप अगर विद इन फैमिली ऐसा कोई डोनर हो सकता है तो आप ट्राई कर सकते हो। अब फिर डॉक्टर भी वही चीजें कह रहे थे। तो फिर हमने इन पर्सन कुछ पेशेंट को इन पर्सन कांटेक्ट किया, मैं मिला, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ गया। तो उसे ये लगने लग गया भी शायद ये चीज़ हमारे केस में भी पॉसिबल हो सकती है। तो उस स्टेज पे फिर मैं हॉस्पिटल गया, मैं मेदांता हॉस्पिटल, डॉक्टर रविंदर स्वाइन जिन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट किया है, आज 4,000 से ऊपर वो लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। तो हम उनके पास गए, तो मेरे वाइफ साथ में थे, मेरे सिस्टर्स वगैरह साथ में थे। तो जैसे ही हम उनके पास गए तो उन्होंने मुझे कहा भी आपका तो इमीडिएट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो मुझे लगा भी, मैंने उनको कहा सर आपने मेरे कोई टेस्ट वगैरह तो करवाए नहीं, कुछ नहीं कहा। तो डॉक्टर साहब कहते ये हाथ है ना, ये रोज ये अल्ट्रासाउंड है। तो मुझे लगा कि मैं राइट स्टेज पे हूँ। तो वो कहते जी आप आपकी तसल्ली के लिए अगर आप चाहते हो तो मैं आपका टेस्ट वगैरह वो सारे करवा देता हूँ। तो मन में क्या था जी, कहीं जैसे हम लोकल टेस्ट करवाते तो उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आती थी। तो ऐसा लगता था अभी चलो अगर हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज में जाने के उसमें हैं तो कहीं ना कहीं इसकी क्रॉस कंफर्मेशन इस बड़े हॉस्पिटल में भी हो जानी चाहिए। तो बस डॉक्टर साहब ने वो टेस्ट लिखे, अगले दिन जैसे ही मीट करने को कहा, मीटिंग के लिए कहा, तो वो एग्जैक्टली उन्होंने जो बताए थे कि हाइपोथेटिकल मैं आपको यही बता देता हूँ, कल देख लेना रिपोर्टें आपकी यही होंगी। तो वो सारा कुछ एज इट इज वही निकला। तो बस वहां से सिलसिला शुरू हो गया कि ये तो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र सर्वाइवल है। बट सर प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर ने तो चलो ये चीज बता दी, हमें तब क्यूरियोसिटी ये थी कि हमारे को बहुत कुछ और पता चले। मेरे को एक विद इन पैरेलल टाइम में एक पेशेंट और प्रोसेसिंग में था। तो उन्होंने मुझे कहा आपने किसी और पेशेंट को डिटेल में या किसी और डॉक्टर को डिटेल में दिखाया? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं दिखाया। तो मतलब वहां पे भी मैं लोगों से ऐसा कुछ करने का सोच रहा था भी कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन हमें जो रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन मिले तो हम उसमें थोड़ा बहुत अपना माइंड को और कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर पाए। बट ऐसा नहीं मिला कुछ भी। एक आधा कोई फैमिली मेंबर कहीं मिल गया तो वो बात नहीं थे करना चाहते। जैसे ही उनका ट्रांसप्लांट हुआ, मे बी रिसिपेंट जो है वो देवर इन वेरी अर्ली स्टेज, तो उनको कुछ लग रहा था भी ऐसा ऐसा करके हम डिटेल ज्यादा नहीं, तो मतलब देवर ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ओन सेल्फ। तो वो दिक्कत आ रही थी। फिर चलो जो डॉक्टर साहब की टीम के मेंबर्स थे उन्होंने थोड़ा बहुत हमें जो गाइड किया। फिर अल्टीमेटली जब जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने डोनर के बारे में बात की। तो मैंने कहा डोनर सर कौन हो सकता है? कहते आपके वाइफ। मैंने कहा जी, कहते आपके देख लेना अभी हम इनके टेस्ट वगैरह करवाएंगे। तो लकीली जो हमारा ब्लड ग्रुप है दैट वाज सेम, ए बी पॉजिटिव, दोनों का सेम ब्लड ग्रुप था। तो डॉक्टर्स ने, जैसे डॉक्टर स्वाइन ने बिना टेस्ट करवाए इनके अपेरेंटली देखने पे ही कह दिया। तो अल्टीमेटली शी वाज लेटर ऑन डिसाइडेड कि यही आपके डोनर होंगे। तो इनकी जैसे प्रोसेसिंग हुई, हम टेस्ट वगैरह के चक्कर में सारा वो सारी डिटेल में हमने शुरू कर दिया जैसे उन्होंने बताया। तो उससे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट फेज आता है कि वो वीडियोग्राफ करते हैं, मतलब जस्ट टू मेक असेसमेंट कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने डोनर को अंडर प्रेशर कहीं ऐसा करके ले आया हूँ। तो वो एक वीडियोग्राफ प्रोसेस था, उसमें 7-8 डॉक्टर जो एक टीम प्रॉपर बनती है, जो वो डॉक्टर्स बैठे थे, उन्होंने सारा पूछा, इंडिविजुअली उन्होंने इंटरव्यू ली। तो मेरे से अलग से क्वेश्चन पूछे, मैम के वाइफ से अलग इंटरव्यू ली, इवन जो इनकी फैमिली थी उनको भी, पेरेंट्स से भी इंटरव्यू ली। वो सारा कुछ हमें तब भी लगता था कि ऐसा ना हो हमें रिजेक्ट कर दें कहीं ना कहीं। मतलब वहाँ वो जो बाद में फिर जैसे जैसे हम ऑर्गन डोनेशन के साथ जुड़ते गए तो मेरे को लगा एक पेशेंट था उसका जैसे डोनर था, तो उसके डोनर दोनों बेटे थे। तो बेटे 6 फुट हाइट थी उनकी दोनों बेटे, बट अल्टीमेटली दे कुड नॉट सक्सीड फॉर क्वालिफाइंग एज डोनर क्योंकि उनका लिवर का इशू था। दोनों बेटे, फिर उनके ब्रदर को सिलेक्ट किया। तो वहाँ डीएनए टेस्ट, वो जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं एज पर, वो सारा उनका डीएनए टेस्ट हुआ। ही हैड टू वेट फॉर 10 to 12 days। तो जब तक उसका वो रिजल्ट तब नहीं आया तब उनका वो अल्टीमेटली वही डोनर उनका ब्रदर जो है उसके बाद वो फाइनल हो गया। तो हमारा वो सारा वीडियोग्राफ हुआ जी सारा। उसके बाद
फिर हॉस्पिटल ने अपनी वेबसाइट पे भी वो डाला भी ये जैसे ही हुआ। तो उसके बाद हमारा जैसे ये सारा फाइनल हो गया, तो अल्टीमेटली वो फिर घड़ी एडमिट कर लिया मुझे अलग वार्ड में, वाइफ को अलग वार्ड में। तो पहले हमें ब्रीफ कर दिया भी ऐसे ऐसे कल आपकी मॉर्निंग में सर्जरी होगी। तो जैसे ही वो दिन आया, तो वाइफ को मेरे को मिलाने के लिए लेके आए पहले, क्योंकि इनको पहले लेके गए ओटी में। तो मेरे मन में बस ये लग रहा था भी पता नहीं शायद ये जीवन की आखिरी मुलाकात ना हो, तो मन डर रहा था बहुत ज्यादा। तो उसके बाद जैसे ये चले गए, तो उसके बाद फिर मेरे को जैसे लेके गए, तो मैं जितनी देर ओटी में नहीं भी लेके गए, बस तब भी मन यही डगमगा रहा था कहीं ऐसा ना हो बस एक ही फैमिली मेंबर रह जाए या कुछ भी, क्योंकि इतनी बड़ी सर्जरी है, एक ऑर्गन को रिमूव करते हैं तो दूसरे का ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तब तक बहुत मन में ये लग रहा था। चलो उसके बाद जैसे सर्जरी होगी, मेरी सर्जरी हुई तो सर्जरी सक्सेसफुल होगी। मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट आए 2-3 दिन, मैंने उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह करवाई। तो सडनली लाइफ में एक ऐसा टर्न आ गया, मैं ओटी में ही था, तो डॉक्टर्स का जो इनफ्लो था वो मेरी तरफ और ज्यादा हो गया। तो मैंने पूछा मेरे को ऐसा क्या हो गया, कहते नहीं अभी तो हमें भी नहीं पता, आपको क्या बताएं। एक्चुअली क्या था कि मेरे को हेपेटिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो गया था। तो उस स्टेज में जो ग्राफ्ट लगाया था, वो थ्रोम्बोसिस के कारण जो ब्लड सप्लाई थी उसमें क्लॉटिंग होगी। तो उनके मैं डॉक्टर्स के चेहरे पढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं आई एम अगेन इन डेंजर जोन। तो वो एक घड़ी थी जिसको मैं अपनी पूरी लाइफ में भूल नहीं सकता, क्योंकि वो सारा कुछ ट्रांसप्लांट होने के बाद भी अगर आपको ऐसे फेज में दोबारा इंडल्ज होना पड़ जाए, तो ऐसे लग रहा था भी एक बार तो परमात्मा ने शायद ये जीवन दे दिया, शायद पता नहीं दूसरी बार क्या लिखा है। तो अल्टीमेटली आई वॉज री एक्सप्लोर्ड, आई वॉज अगेन शिफ्ट टू ओटी। तो वो 8-10 घंटे की फिर सर्जरी हुई। उसके बाद हालत बहुत खराब लगने लगी, लग रहा था भी शायद मैं ना बच पाऊं। तो बस परमात्मा ने ये सेकंड लाइफ जो है वो दे दी। तो तब मैंने इंसिस्ट फिर किया भी मेरे वाइफ को मेरे को मिलाओ। क्या मैं देखना चाहता था भी जिन्होंने मुझे ये ऑर्गन डोनेट किया, जिन्होंने ये सेकंड चांस एट लाइफ दिया, वो जिंदा भी हैं। मन में ये क्वेरी चल रही थी। तब फिर उन्होंने, क्योंकि नोबडी वाज अलाउड टू कम टू द जो मेरा वो रूम था वहां पे आईसीयू में, तो फिर वो इनको व्हील चेयर पे मेरे इंसिस्ट अपॉन करने के बाद भी इनको व्हील चेयर पे लेके आए। तो व्हील चेयर पे भी बस वो डोर के आगे ही दिखाया, उन्होंने वेव किया, तो मन को सुकून मिला भी हम दोनों जिंदा हैं। तो वो घड़ी ऐसा लगा भी बच गए बच गए, बट रिकवरी बहुत स्लो हुई, क्योंकि सेकंड सर्जरी होने के बाद ऐसा फिर मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो मेरा प्रॉन्ग हो गया थोड़ा हॉस्पिटल स्टे, आईसीयू स्टे। 22-23 दिन के बाद फिर वो एक्चुअली इनसे फिजिकल वो मुलाकात हुई जी, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। इनको पहले डिस्चार्ज कर दिया। तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि मेरे को कितनी दिक्कतें आई हैं, जब मेरे को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें जो जो चैलेंजेस आए, तो मन में लगा यार ये इस सिलसिले में ये परमात्मा ने जन्म दे दिया, शायद ये जन्म कहीं ना कहीं डेडिकेट करना चाहिए। हम एजुकेटेड हैं, तो अगर इस फील्ड को हमें मतलब ये चीजें बाद में बहुत बाद में मन में आई, जब हमने ऑलमोस्ट 5-6 महीने, क्योंकि ये एंटी कोगुलेंट जो इंजेक्शन थे वो चलने लग गए। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल स्टे ज्यादा होगी, गुड़गांव में मैं 3-4 महीने का पीरियड वहां स्टे हो गया। फिर बहुत सारे पेशेंटों से मुलाकात होनी शुरू होगी। मैंने देखा बहुत छोटे बच्चे जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, वो भी अपना चेकअप में थे। तो कहीं ना कहीं लगा भी ये तो बहुत इसमें लोगों के मन में बहुत क्वेरीज हैं। तो वो सारा फिर हमने मन में, अब कहीं ना कहीं वो चल रहा था, हम अवेयर नहीं थे, हमें पता नहीं था कुछ भी, बट कहीं ना कहीं वो कसक जो है ना मन में चल रही थी, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। बट अल्टीमेटली जैसे वो रिकवरी जाती धीरे धीरे होता गया, तो फिर मैंने फेसबुक एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। तो उसमें जाके देखा कि बहुत लोग हैं, फॉरेन में बहुत लोग हैं। तो ऐसे ही मैंने जैसे ही 2-4 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो देखा ट्रांसप्लांट के ग्रुप्स हैं, डोनर्स के ग्रुप हैं। तो ऐसे चलते चलते मुझे एक उसमें रेफरेंस आया वहां से, अमेरिका से, कि हम ऐसे करके लिविंग ऑर्गन डोनर्स जो हैं उनकी हम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही जगह एक ही टाइम पे हम इकट्ठे होकर वर्ल्ड में मैसेज देना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा। अभी जो ऑर्गेनाइजर थे 2 लेडीज थे, तो उन्होंने तो मतलब रिलेशन के बाहर जाके कहीं ना कहीं अपनी किडनीज डोनेट कर रखी हैं। तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि ऐसे लोग अगर जिनका विद इन फैमिली कोई डोनेशन नहीं है। मेरे वाइफ ने तो मुझे बचाया, जहाँ पे
एक कनेक्शन था हमारा, एक रिलेशन था, बट वी सल्यूट टू दोज पर्संस जो जिनका लाइफ में मकसद क्या है, अनरिलेटेड डोनेशन करना है तो वी शुड बी शूटिंग इन पर्सन करनी है। हमने डिसाइड किया कि हम जरूर आएंगे। वो कहते हैं 1 डे शो है, आपके पैसे लगेंगे। मैं कहा ये परमात्मा ने जीवन दिया है तो पैसे तो हम सरकारी जॉब कर रहे हैं तो ये मिलने लगे, दोबारा मिलने लगे, नहीं तो पिक्चर ही खत्म हो गई थी, खेल ही खत्म हो गया था। तो सर हमने यस किया, तो हम एम्बेसी में भी गए। एम्बेसी का एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग था। ड्यूरिंग इंटरव्यू उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा, कोई रहता है आपका वहां? मैं कहा नहीं जी। व्हाट इज योर पर्पस? मैं कहा 1 डे शो ओनली फॉर, वी आर गोइंग फॉर ऑर्गन डोनेशन, ये रैली है, हमने एक इवेंट है। कहते हैं अमेरिका यही चाहता है, वी इमीडिएटली ग्रांट यू वीजा। तो हमें इमीडिएट सर विदाउट एनी हिच हमें वीजा मिल गया। वी बिकेम पार्ट ऑफ दैट इवेंट। तो वहाँ बहुत प्यार मिला लोगों का, क्योंकि हम इंडिया से एक ही गए हुए थे। तो 420 के करीब जो ऑर्गन डोनर्स थे वो आज भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हेडेड है जी। तो वी बिकेम पार्ट ऑफ दैट इवेंट। उसके बाद हमने फिर अपनी वो जैसे ही लाइफ मिलती गई, लगा भी इसको इस अब डोनर ने तो लेबर दे दिया, इसका प्राइमरी प्रोटेक्शन का जो अब जिम्मा है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी है। तो फिर मैंने बस अपनी वो एक्सरसाइज मोड पे, गेम्स में, उसमें फोकस करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली वी स्विच ओवर टू गेम्स। तो हम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से तो नहीं थे, बट ऐसा लगा भी हमें अगर इस ऑर्गन को लाइव रखना है लंबे समय तक तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो हमने ट्रांसप्लांट गेम्स ऑफ अमेरिका में पार्टिसिपेट किया। वी वर द फर्स्ट इंडियन कपल टू पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट आल्सो। उसके बाद हमने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 2019 में पार्टिसिपेट किया। तो पूरे वर्ल्ड में मैसेज दिया, हमें बहुत अच्छा लगा कि एक लाइफ जो अदरवाइज ये वी लॉस्ट द लाइफ, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग, मैं ऐसे लोगों से मिला जिनके 6 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हुए हैं, 6 ऑर्गन्स। आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं तो एक ही ऑर्गन की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो 6 ऑर्गन है। तो ये तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं आगे जाना चाहिए। तो ये हमें जो सेकंड टाइम जो मिला है तो इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद हमने सर आपसे जुड़े, तो आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिला। आपको देखते हैं, आज की डेट में भी देखते हैं तो मन करता है अभी ऐसा कुछ करना बहुत असंभव है, पर ये आप जैसे कर रहे हो, वी सैल्यूट यू सर। तो ऐसे में लगा भी हमें लोगों तक और डिटेल में जाना चाहिए। देन वी डिसाइडेड, हमने मास्टर डिग्री की, मैंने 2 मास्टर डिग्री की। हमने मास्टर कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में की। पर्पज ओनली ये था कि मास लेवल पे हम वो सारी बारीकियां सीखे कि लोगों को कैसे उनके पास जाएं, उनसे कैसे कैसे हम उनको इंस्पायर कर सकते हैं, कैसे उनको ये ऑर्गन डोनेशन, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कहने की बात कुछ और होती है, जब एक ऑर्गन डोनर अपने आप को एक स्ट्रेचर पे लिटा के किसी ओटी में जाता है तो वो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। कहने का तो हम कहते हैं हमने ऑर्गन डोनर कार्ड बनवा लिया। तो कार्ड तो बनवा लिया, एक कमिटमेंट इन रियल उसको प्रैक्टिकल में जब कन्वर्ट करना है, दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज इवन टुडे। तो वो जो आज की डेट में हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं विद द ओनली पर्पस के जो लोगों के मन में डर है, वी आर द रोल मॉडल, वी आर द लिविंग प्रूफ, गिविंग प्रूफ, लिविंग प्रूफ वी आर बिफोर द फैमिलीज। जो लोग डरते हैं उनको भी कहीं ना कहीं होप मिलती है कि अगर इनको जीवन मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है कहीं ना कहीं। दूसरा फिर हमने सोशल वर्क की, एमए की, 2 एमए की, मैम ने 3 एमए की। तो मैं ये एमए के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ तो हम इस लाइफ को तरस रहे थे, कहीं हमें, हमारे पास बेटा भी बॉर्न हुआ, एक और लाइफ भी मिल गई। कहीं हमें, हमारे को इतनी अपनी क्वालिफिकेशन, हमने इतनी पढ़ाई तो हमने अपने ट्रांसप्लांट से पहले भी की, इतनी पढ़ाई हमने उसके बाद कर ली। तो बहुत कुछ किया जा सकता है ये, अगर हम मतलब परमात्मा करने वाला तो वही है, पर एफर्टलेस नहीं होना चाहिए। तो सर यही है जी। आज अगर हम इस प्रोग्राम का, इस इवेंट का पार्ट हैं, हमने मीडिया में भी जाके, जलंधर दूरदर्शन है, तो दिल करता है कि लोगों को, वहां से भी कॉल आई, वहां पे भी हम गए, लोगों को बहुत पुरजोर हमने अपील भी की ऐसे काम में आगे आना चाहिए। तो हमने ये मिशन ऑर्गन डोनेशन, ताकि इस दुनिया से जाने से पहले कोई भी बंदा इस चक्कर में ये लाइफ ना गवाए कि उसको ऑर्गन नहीं मिला। तो ये इसमें बहुत काम अभी भी होने वाला है। तो मेरे ख्याल ये इस कहीं ना कहीं हमें लाइफ लॉन्ग, मुझे तो खास करके भी, मुझे नींद नहीं आती अगर मुझे कोई कॉल किसी की आ भी जाती है ना, मुझे हेल्प चाहिए, मैं तो सर अपनी गाड़ी उठाता हूँ, उसके घर पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कतें आई। सर आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं मिस्टर गोयल।
बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रतन आपका कि आपने मन से अपने इतने विचार रखे और बताया कि क्या क्या परेशानी आई। अब क्योंकि आपकी वाइफ ने आपको डोनेट किया है, वो हमारी ऑनरेरी मेंबर हैं, और अभी आपने कहा कि कुछ लोग अनरिलेटेड लोगों को देते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है। तो हमारे एक ऑनरेरी मेंबर हैं प्रमोद महाजन जी, जुड़े हुए हैं हमारे संग। इन्होंने किडनी दी थी 2000 में, वो अनरिलेटेड को दी थी। तो बहुत बड़ी बात होती है, और इसलिए मैं कहता हूं कि जो डोनर होता है वो एक भगवान का स्वरूप होता है। तो आपके केस में आपकी वाइफ है। मेरा उनसे एक प्रश्न है, क्योंकि उनको हम सुन भी चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम का वो है, तो हम थोड़े से प्रश्न रखेंगे और बाकी लोगों से भी मैं चाहूंगा प्रश्न रखें। तो मेरा एक प्रश्न आपसे है रोटेरियन अरोड़ा। इनकी बहनों, इन्होंने जिक्र किया बहनें भी मौजूद थी, और कहा जाता है कि सिबलिंग की जो मैचिंग होती है सबसे ज्यादा होती है, सिबलिंग से ज्यादा मैचिंग नहीं होती। उन्होंने डोनेट क्यों नहीं किया, आपने क्यों डोनेट किया, इसका जरा जवाब बताएं। Good evening, all of the Rotarians of Rotary Club of Organ Donation International. सर, इसके बारे में कहूंगी कि घर में किसी ने मना नहीं किया, बट सबसे पहले मैंने ही अपना वो जो कहते हैं कि प्रपोजल रखी, प्रस्ताव रखा कि हाँ, पहले सबसे पहले मैं ही आगे आऊंगी, क्योंकि मेरे को लगा कि जो लव एंड अफेक्शन हमारी दोनों की आपस में है, उसके लिए सबसे पहले मुझे ही, मतलब मैं ही चाहती थी कि मैंने भगवान से बहुत प्रेयर की है, भगवान की जो है, मैं अगर डॉक्टर ने मुझे देखते सार कहा कि आप 80% फिट हो इनके लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो मेरी भी यही प्रेयर होती थी कि मेरा ही जो है ऑर्गन है इनके लिए काम आए। तो मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और बात नहीं थी। जी, अब मैं चाहूंगा कि और जिससे भी प्रश्न पूछने हो, डोनर एंड रेसिपिएंट्स मौजूद हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए। क्वेश्चंस प्लीज। चलिए, जब तक मैं पूछता हूं फिर आपसे और क्वेश्चन। आपने जब डिसाइड किया, रूपा अरोड़ा जी, डॉक्टर रूपा अरोड़ा जी, कि आप डोनेट करेंगे इन्हें, तो उस वक्त काफी रेजिस्टेंस आया होगा आपकी अपनी फैमिली से, मैके वालों की फैमिली से, आपके ब्रदर, आपके पेरेंट्स, और भी लोगों ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके कुलीग्स ने कहा होगा कि ये बेवकूफी आप क्यों कर रही हैं, क्यों अपनी जान, उनकी तो जिंदगी कुछ क्षणों की है, कुछ महीनों की है, कुछ दिनों की है, आप अपनी जिंदगी क्यों दांव पे। क्योंकि जिस वक्त आपकी सर्जरी हुई थी, जैसा रतन जी ने बताया, उस वक्त सर्जरी इतनी एडवांस नहीं थी इंडिया में, जो अब हो चुकी है। तो उस वक्त आप कुछ का मन में कभी डामाडोल हुआ कि छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं सर, ऐसा विचार कभी भी नहीं आया, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मीटिंग बकायदा बिठाई गई, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे मदर, मेरे ब्रदर मेरे साथ गए थे। मतलब उन्होंने खुद कहा कि हाँ, तेरी लाइफ है, तेरे को जो ठीक लगता है तू कर, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो मेरे लिए उनकी ये सपोर्ट ही काफी थी। मेरे को मायके से भी ससुराल से भी दोनों तरफ से ये फुल सपोर्ट मिली इसके लिए। तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में पहले सुना तो नहीं था, बट जब इसके बारे में धीरे धीरे डॉक्टर्स ने काउंसलिंग की, तो सारा जो मन में डर था, नहीं मतलब जो थोड़ा बहुत था, वो भी मतलब खत्म होता जाता रहा। एज ए ऑर्गन डोनर आपको कोई मेडिसिन बाद में, जैसे मेडिसिन खाई होंगी, रेसिपिएंट्स तो खाते हैं काफी, yes, आपको कुछ मेडिसिन चली बाद में? सर, तो मेरी मेडिसिन बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए, 1 मंथ या 1.5 मंथ के लिए चली। बहुत ज्यादा नहीं था वो, थोड़ा बहुत पेन रहता है, क्योंकि इसको जो रीजेनरेटिव ऑर्गन है लीवर, इसको मतलब पूरा रीग्रो होने में 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। तो इतने टाइम 3 मंथ्स तक मेरी रिकवरी हो गई थी। मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली थी आफ्टर 3 मंथ्स। तो ऐसी कोई मेरी परमानेंट दवाई कोई भी नहीं चली, मेडिसिन जो थी टेम्परेरीली थी, वो रिकवर करने के लिए ही थी। आपको रूटीन वर्क पे आने पे कितना समय लगा था अपनी सर्जरी के बाद? सर 2 मंथ्स। 2 months. 2 After महीने के 2 बाद months, मैंने some other मतलब, problems with regard to that donating surgery? कोई यस सर, डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आपको महसूस होती हो? सर फिजिकली ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे को महसूस नहीं हुई। आफ्टर 3 मंथ्स मैं मतलब घर का मतलब और ऑफिस का सारे काम करने मैंने स्टार्ट कर दिए थे, नॉर्मल, एक नॉर्मल इंसान जो काम करता है वैसे। वेरी गुड। और आपने बताया कि सन हुआ बाद में, वो कब हुआ, कितने टाइम के बाद सर्जरी के? सर वो मेरी सर्जरी के 3 साल बाद बॉर्न हुआ, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, बल्कि बिल्कुल वो भी फिट है, हम भी फिट हैं।
जी मतलब रतन साहब, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ जी आपका लिवर क्यों खराब हुआ? सर, मेरा I क्रिप्टोजेनिक want to know लिवर that. सिरोसिस डायग्नोस हुआ। सॉरी। मेरा डायग्नोसिस क्रिप्टोजेनिक लिवर सिरोसिस डायग्नोस ओके हुआ। ओके ओके। जी सर। तो अल्कोहल से कोई संबंध नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। इसके बाद आपको डॉक्टरों ने मना किया अल्कोहल पीने को? नहीं, मैंने कभी इस टॉपिक में ना तो पूछा ही है जी, ना ही कभी ऐसा मन में ही आया जी भी ऐसा है। उसमें फील्ड में कोई ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लीवर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अल्कोहल का है, और ज्यादातर जो लीवर प्रॉब्लम इंडिया में है वो हाँ अल्कोहल की जी, वजह से। अल्कोहल भी है सर। इवन हेपेटाइटिस सी से पेशेंट बहुत पीड़ित हैं। डायबिटिक पेशेंट हैं जी, डायबिटीज के कारण। क्योंकि उसके बाद तो पेशेंट इवन बच्चे, हमारे डॉक्टर स्वाइन ने एक बार इवेंट किया था गुड़गांव में, हॉस्पिटल में बच्चों को बुलाया था। 10 साल जब पेशेंट के हुए थे, मेरे तो 10 भी नहीं थे हुए। तब मैंने देखा सर, तकरीबन 40 के करीब बच्चे थे जो मतलब 2 साल से लेके 10 साल या 11 साल की एज ग्रुप में होंगे। वो एक गाना भी उन्होंने शूट किया था, तो हम उसमें विटनेस रहे हैं। तो तब मैंने देखा भी इतने छोटे बच्चों में तो कोई कॉज क्या हो सकता है जी उनमें तो। नहीं, सही कह रहे सर हैं अभी एक आप। रिसेंटली यस यस यस। अभी रिसेंटली मैंने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, जो चंडीगढ़ के स्कूल्स का बना हुआ है। तो एक धनास गांव है हमारे चंडीगढ़ में। तो वहां का एक 11 इयर्स ओल्ड का बच्चा है जिसको लीवर की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फंड रेज की डिमांड की हुई थी कि हाँ हम टीचर्स इतने हैं तो थोड़ी भी हेल्प करें। तो पीजीआई में उसका 11 लाख खर्चा बता रखा है। 11 साल का वो बच्चा है और उसको लीवर ट्रांसप्लांट बता रखा है। मतलब आजकल छोटे बच्चे भी हैं जिनको मतलब प्रॉब्लम्स जी, हो रही और हैं। उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर वो बीपीएल उनपे येलो राशन कार्ड है, तो यस। जो 5 लाख तक की लिमिट का होता है, तो उसमें हाँ जी। 15 लाख की लिमिट है, गवर्नमेंट आयुष्मान भारत में दे रही है। आप उसमें अप्रोच करिए, 15 लाख रुपए आपको वहां से मिल जाएगा, तो 11 लाख वाला मामला हो सकता है। और तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब Sir, और I wanted to ask a question, Mr. PK Ratan. सर आपको ये पहले मतलब कैसे आपको क्या symptoms आए जिसकी वजह से you thought that you had a liver issue, and at what age? I mean, what are the symptoms one should look out for? मैं आई वॉज एट अराउंड 40 के आसपास थी मेरी एज। तो मुझे हल्का जैसे बेली में, यहाँ सेंटर में, पेट में लगा जैसे हल्की हल्की पेन लग रही है, ऐसा कुछ लगने लग गया। तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा पता नहीं क्या रूटीन में है। तो उसके बाद जैसे मैं किसी लोकल फिजिशियन के पास गया, तो उन्होंने मेरे को कह दिया भी आप जैसे वो पेंटोसेट टाइप है, भी एसिडिटी के कारण कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो ले लो। तो अल्टीमेटली वो लिया, उससे भी ऐसा लगा भी नहीं फर्क पड़ रहा। तो फिर मैंने, गेस्ट्रोंटोलॉजिस्ट हैं, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। वो कहते सबसे पहले तो आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। आफ्टर दैट मैंने कभी अपना अल्ट्रासाउंड भी नहीं था करवाया। तो फिर वो अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें करते करते डॉक्टर ने कहा कि आपके तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मैं डर गया, मैं किसी क्या कहते हैं आपका तो ऐसे ऐसे करके लिवर सिरोसिस वर्ड जब यूज किया, तो मैंने मतलब अपनी लाइफ में सुन रखा था भी सिरोसिस का ऐसा कोई है। तो मैं तो डर गया बहुत ज्यादा जी। तो थोड़े दिनों बाद फिर वो मतलब 15-20 दिन बाद मुझे जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो गई। तो वो अपेरेंटली बिलीरुबिन फिर हाई होना शुरू हो गया। तो वो उसके बाद मैं खुद जैसे ऑफिस में जॉब करता था, तो मैंने कंटिन्यू रखा उसमें। मैंने कोई रेस्ट भी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था अभी कभी ऐसी इतनी सीरियस कोई प्रॉब्लम से मैं सफरर हूँ। तो वह जैसे जैसे वो फिर जॉन्डिस पड़ता गया, फिर तो मुझे मतलब लेवल ही बहुत इतना ज्यादा हो गया, फिर तो मुझे मतलब जॉब करना भी बहुत प्रॉब्लम होगी। वो एक इंसिडेंट था जी, जहाँ से थोड़ा मतलब ये इनिशिएशन हुआ। But jaundice actually इससे related नहीं है. So it was majorly the pain that was the concern. और वो jaundice आपका लेकिन heal नहीं हुआ because there was internally another problem आप कह रहे इंटरनल हैं. जी, वो बिलीरुबिन लेवल का बस वो लिवर एंजाइम वगैरह जैसे अपसेट हो गए, वो लेटर Right. ऑन पता चला भी वो इसी कारण सारा वो बिलीरुबिन भी यही कारण था बढ़ने का। जी Okay. So अभी basically इतना छोटा pain भी neglect नहीं करना चाहिए. And नहीं, one should get diagnosis done in right. मैंने Thank फिर you. एक्चुअली क्या था मैम, मैंने लोकली यहाँ जैसे ट्रीटमेंट करवाने में चक्कर में पड़ गए भी, ये जॉन्डिस हो गया जी, कहीं उस पे चलते हैं, इसके देसी जो टोटके कहते हैं ना जी, 2-3 महीने उसमें खराब कर दिए। अल्टीमेटली जब मैं मेदांता डॉक्टर्स के पास गया, वो कहते आपने बहुत पीरियड लॉस कर दिया। 2-3 महीने का पीरियड आप अगर उस वक्त ही हमारे पास जैसे आ जाते तो शायद ऐसा। अब वो एक स्पेकुलेशन था जी, क्या शायद क्या कह सकते हैं जी, क्या होता क्या ना। जी, अभी जैसे आप बता रहे थे कि बच्चों को बहुत ज्यादा हो रहा है,
इसीलिए रोटरी क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन इंटरनेशनल ने लास्ट मीटिंग में ही डिसाइड किया है कि हम लोग पीडियाट्रिक सर्जरी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से टाई अप कर रहे हैं। उसमें आयुष्मान भारत वाले भी हैं जो हमारे संग आ रहे हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत में पहले 5 लाख की लिमिट थी। और आप तो जो हमारे संग जुड़े थे मीडिया कॉन्फ्रेंस विद लाल गोयल में, आपको पता है, तो एक जी मैं जिसमें डॉक्टर सीवी आनंद बोस आईएएस गवर्नर जो हैं आजकल वेस्ट बंगाल के, वो भी थे। और वो क्लिपिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई थी, और उसमें हमने यही रेस किया था कि 5 लाख से ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली फॉर ऑर्गन डोनेशन इट्स आयुष्मान भारत लिमिट इज 15 लाख। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बच्चा जो आप बता रहे हो 11 साल का है, वहाँ उन्हें अवेयरनेस क्रिएट कराइए, वहाँ के डॉक्टर्स को बताइए, आयुष्मान भारत जो वहाँ के कंसर्न ऑफिसर हैं उनको बताइए कि ये 15 लाख की लिमिट है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कनेक्ट करिए, मैं आपको वो सर्कुलर और वो सब भेज सकता हूँ, जिससे कि वो आप कन्विंस करें, तो एक लाइफ बच सकती है आपके एफर्ट से। जी बहुत सर, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद मैं देना चाहूंगा आप दोनों का। और किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, नहीं तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट एजेंडा प्लीज। Sir, to mention the causes of liver failure, ना, जैसे अभी रतन साहब बोले that one is cryptogenic hepatitis, वो भी होता है. We have hepatitis happening A, B, C, E's and all. Sir, one of the very common thing जो आजकल के young people में होता है, it's called non-alcoholic steatohepatitis. उसमें क्या होता है? People have abnormal diets right now. It's a metabolic dysfunction. उसमें से they have something called as fatty liver. So fatty liver के अभी grade होते जा रहे हैं, grade 1, grade 2, grade 3, and even that leads to liver failure. You know, that's one of the biggest, like it's like a small level epidemic which is starting, and you see because of our eating junk food, lifestyle changes, उसमें से होके. So it's called as now, it was called as NASH, now it's called as MASH, metabolic associated steatohepatitis. It's one of the latest coined terms, तो and this is killing a lot of people. डॉक्टर मोनिस आपके हिसाब से जो जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर और हाँ जी. पिज्जा वगैरह जो आजकल की नई जनरेशन खा रही है, उससे भी लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है। Problem आ सकती तो है, पहले yes. लोगों को मिथ था कि हम सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही, अल्कोहल ही बदनाम था, तो अल्कोहल नहीं, अब ये सब चीजें बदनाम हैं। हाँ, हाँ यस, जी. दीपक अग्रवाल जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अंकल जी, 2016 में मैं इससे पीड़ित हो चुका हूँ। तो लिवर सोरेसिस हो चुका था मुझे, और मेरा भी बिलिरुबिन जो था वो अराउंड 58 to 65 के बीच में रहता था। और बिलिरुबिन हाई होने के कारण मतलब बॉडी पूरी येलो कलर हो चुकी थी, एंड आई वाज एडमिटेड टू फोर्टिस मुलुंड, एंड डॉक्टर नूतन देसाई थी, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था, बट आफ्टर 14 days शी हैड गिवन अप कि भाई लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। एंड लकीली वी हैड गॉन फॉर द डामा, एंड इमीडिएटली आई वाज शिफ्टेड टू ग्लोबल हॉस्पिटल परिल। तो इमरजेंसी में बेड नहीं अवेलेबल थे, तो फिर कुछ सोर्सेज से बेड अवेलेबल करवाया। एंड व्हेन द डॉक्टर हैज मेट मी, एंड हिज फर्स्ट स्टेटमेंट कि क्या भाई तेरी तो उम्र भी नहीं है, तो इतना दारू क्यों पीता है? तो मैं बोला सर मेरे फैमिली में तो पान मसाला भी नहीं है, सुपारी भी नहीं है, कभी टच भी नहीं की है। सो आई वाज शॉक्ड दैट टाइम। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि बिकॉज ऑफ मे बी ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज आपकी मिठाई की दुकान है तो आप मिठाई ज्यादा खाते होंगे, वो भी रीजन मिठाई हो से सकता है। ज्यादा जंक फूड बहुत प्यारा जंक फूड लगता बहुत खाया है। है, तो इट्स ए वार्निंग टू ऑल ऑफ अस, जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो आजकल खाते हैं, या जिनके यंगस्टर्स हैं जिनके बच्चे हैं, कि उन पे अंकुश रखें। इतना इतना खिलाएं जरूर, लेकिन लिमिट में खिलाएं, जिससे कि लीवर प्रॉब्लम ना हो जाए। यस, लेकिन वो टाइम पे डॉक्टर्स का ये कहना था कि आज के तारीख में जो ग्लोबल हॉस्पिटल की जो टीम थी, उनका ये कहना था कि आज के तारीख में लिवर सोरेसिस जो होते हैं, मतलब स्पेशली जो जॉन्डिस एक पाया जाता है और उसके साथ में हर्पीज भी होता है। मतलब उनका ये कहना था कि कुछ एनिमल बाइट्स या मॉस्किटो बाइट आपको हुआ होगा, एट अ टाइम 2 डिजीज हुए, इसीलिए शायद फोर्टिस उसको मैच नहीं कर पाया या गेस नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे इचिंग्स भी बहुत होती थी बॉडी में, जी और जी रेड स्पॉट्स हो गए थे काफी जगह, बट वो कपल ऑफ डेज के लिए ही थी। ओके, थैंक यू वेरी मच दीपक जी कि आपने अपने विचार रखे। आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट एजेंडा बिकॉज वी हैव सम इंफॉर्मेशन टू गिव।
Over to you, Ritika. Yeah, so zero time, I guess it was. So I would rather request you, Mr. Goel, to please share No, the so we will go things for that you the, had yeah, to. I will inform the informations are required. First Yes. of all, I would like to congratulate and thank you all the members of Rotary Club of Organ Donation International. We have achieved a milestone, I must say, on our, at the time of our charter, we were 30 members. And today we are 43 members, including 4 honorary members. So we can say that our growth is very good from 30 to 39, if we say, but if we are not including, but we are including honorary members also, so 43. Because whatsoever meetings I am attending, I attended 2 meetings day before yesterday, one and yesterday. Everyone was worried about the membership growth and loss of membership. The data what is been given latest in the Rotary International meeting which held in USA, that 1.5 lakhs people joined the Rotary last year and 1.5 lakhs people left the Rotary last year. So this is the alarming thing. Everybody was talking, and when they asked me, because we have not gathered our updated the data, but today I have very happy to say, and this is because of all of you. You have cooperated, you have given me that strength that I can pursue the people. I have seen that the people are liking, and today also our strength is good. I can see 22 people are members are already there in our group. So it shows that people are understanding and they now know that thing growth can be. So this credit goes to all of you. I think we must clap for ourselves that we have achieved this. Now, second thing I would like to inform you that as last time we have decided to go for that pediatric surgery, and the major role in that is being played by our PDG Rotarian Dr. Rajendra Agrawal, who is our mentor also. And I discussed in detail with him, and we are going to sign MOU once the things are ready. We will put up the MOU in the board of directors, and once they will approve, we will sign the MOU. But because of his and the offer which has given to us by PDG Rotary and Dr. Rajendra Agrawal, and the way he's pursuing the corporates to put the funds, I'm sure that he will be an asset for our club. So I propose to appoint or nominate him as an honorary member of our club, so then he can officially talk on behalf of our club. And so my proposal is this: if our all the members who are present here, if a majority of the members agrees, so we can send a letter to him and appointing him as an honorary member. Yes, please. Agreed. No, but Anyone? Agreed. No, my point is because he's already a member of Your voice is cracking, Mr. Whether Pradeep. there is a possibility of. Sorry. I am Yes. saying that Dr. Agrawal is today a member of a regular Rotary Club. Whether it is permitted in the bylaws of the Rotary Club, whether he can be a honorary member. Yes, it is If already. it is there, it should not be a problem. Yes, it is permitted. That's why I propose it. Any member, if he is a member of any Rotary Club, he cannot be a normal member, regular member of another Rotary Club, but he can be honorary members of as many clubs as he wants or the club wants. So I think the majority says that we can opt him, so we are taking it. Third information is, before I will go to Dr. Our Rotarian Deepan Shah, because he is also having some information to give. Before that, one more information I would like to give. Next meeting, which is going to take place on 28th, Sunday, the 28th, we are inviting a guest, and he is Dr. Sunil Keswani. Dr. Sunil Keswani is a renowned plastic surgeon, and he is the first person in India who started the skin bank in India, which was started in India, in Mumbai. And he's the person now, he's heading 10 skin banks all over India. So he is going to give the details about the skin banks as well as the skin donation, the challenges, and what are the things and what are the rules, laws
and X permissible, who can open the skin bank, which we were discussing for in the 2-3 meetings. So he's the correct person, and he has agreed. He will be joining us for the next. So I request all of you, please join the meeting next time. It's a very, very important meeting. You will learn about this thing, so then we can take up a project of setting up a skin bank in those cities where there is no skin bank. So these are the information which I want to share to you. Now I would like to go to Rotarian Deepan Shah. He's having a very, very important new information. When he told me, I was very excited, but because he was trying to get somebody who can speak on that topic authentically, but he says at least he can share the information, so we can explore. And once he will get the authority, because this invention has taken place only in USA, it is very much concerned with organ donation also. So I think we should hear from him. So Rotarian Deepan Shah, please tell us about what you want to share. Hello, everyone. Mr. Goel, I would like to wait for a few more days because I'm looking for transplant surgeon, and hopefully she can able to join. And can you turn? Deepan Shah, can you turn your mobile like this? Yes, please. I request all of you who are joining, please always keep your mobile, if you are joining your mobile, in landscape position like this, so that you will be totally clear. Because this is a recording, and whatsoever we are recording, it is going to be in the public domain. So I request all of you to keep your screen on. Otherwise, you will be shown as a dark person. It's a recording. You can share with your friends. You can share with everybody. We are talking only purely about organ donation and tissue donation and body donation. Yes, Rotarian Deepan Shah, please. Yes, Mr. Goel, and hello, all fellow Rotarians. Today's conversation, wonderful, Mr. P.K. Ratan, Rupa Arora, and then a lot of inputs by an experienced Deepak Agrawal and Dr. Monish. So, Mr. Goel, I'm looking for this transplant surgeon, the part of the team that surgery happened at Mount Sinai of New York. So, hopefully, I can able to get her, and I want to hear from her. No, but at least you can disclose. You can disclose the thing which you told me. I think that is very interesting for our members. This 10,000 feet highlight I'm giving you. There was a Medtronic. Medtronic is a medical device company. It's located headquartered in New Jersey and upstate New York. They are usually very pronounced and very front runner for medical innovative products. And this time they come up with that FDA express approval given to Medtronic's device. It's a spiral shape for currently worldwide, especially America, India, and all emerging countries. The highest problem about the blood pressure, right? And we all know the blood pressure is a primary cause for a lot of cardiovascular, kidney, and other events that happens because of the high blood pressure. And sometimes there is a blood pressure situation that cannot be controlled by even medication. So the Medtronic came up with a solution. That surgery happened on January 19th in a New York Mount Sinai hospital. There was a surgeon, he was an Indian surgeon, the leading surgeon with a team of other transplant surgeons. So the device, they inserted close to the kidney arteries, and they inserted, and it's a very minimum invasive surgery. So this device, what it does, the nerves that hyperactive or overactive, it bring it calm down and cool down. So the blood pressure is controlled forever in future without medication. And this will help a lot for future that people has, especially obesity, diabetes, blood pressure, cardiovascular strokes, that might be a game-changing event. This is the information I would like to share, and I'm waiting, hopefully, that one of the transplant participant surgeon can able to come on the platform here and say, I want to hear from her also. If not, then this is the information. Yeah, thank you very much, Rotarian Deepan Shah, because it's a very, very important. मैं हिंदी में बता दूं कि एक नई डिवाइस आई है जो किडनी के पास इंसर्ट कर दी जाती है मिनिमम इन्वेसिव लेप्रोस्कोप वगैरह से,
और उससे आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए रेगुलराइज हो जाएगा विदाउट मेडिसिन। आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, जो मेडिसिन पे होते हैं ब्लड प्रेशर में, कहीं भूल जाते हैं या कई बार कुछ ऐसा हो जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर जाता है। और वो ब्लड प्रेशर जो है ये सबसे बड़ा कॉज है हमारे ऑर्गन्स को खराब करने का, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो, कोई भी हो। ब्लड प्रेशर अगर चेंज हो जाएगा तो हर चीज में प्रॉब्लम आएगी। तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर। लेकिन जैसा दीपन शाह जी ने कहा कि वो जो सर्जरी की टीम जिन्होंने किया उसमें एक इंडियन ही है जो लीड कर रही हैं लेडी, अगर वो आ जाती हैं अपने प्रोग्राम में, वो कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे हम सुनना चाहेंगे कि क्या है क्या नहीं है। पर ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन आई थी, इन्होंने मुझे दी थी, तो आई सेड व्हाई नॉट यू शेयर विद आवर मेंबर्स। सो एटलीस्ट इतना काम हो रहा है मेडिकली कि हो सकता है कि कुछ सालों के बाद हम हो या ना हो, लेकिन तब तक फिर ऑर्गन्स की वजह से शायद कोई इतना मेडिकली इन्वॉल्व हो जाए, इंप्रूवमेंट ना डेथ हो। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन दीपन आशा। नाउ वन मोर इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू शेयर, व्हिच Ramnath Pradeep has asked me to share about the Kolkata program. Kolkata program has been postponed due to the election, because what happened that I was corresponding and they were very excited to host our conference, but there was some mishappening happened in West Bengal. Some ED enforcement director pupil were beaten by the local pupils, and so there was a very bad blood among the the ruling party and the governor house. So it is right now, they advised me not to keep this. We will postpone it. We will see it after the elections. If the same governor will continue, we will keep it there. Otherwise, we'll keep the conference somewhere else. That is, it's not a good news, but it is not also a bad news, because it happens. We try our best. We try 10 things, one can happen. So this is what one more information I wanted to share. And one more information I want to share. Today morning, there was a marathon, Mumbai Marathon, which took place every year. It is taking place, those who knows about Mumbai or those who knows about this thing, where more than 20,000 people are participating. They are from all classes, from the students to the senior citizens. And today, I am very happy to inform that myself and Rotarian Ramnath Pradeep, we both went. But unfortunately, we could not participate inside because the you can say something happened, misunderstanding or whatnot, or some technical fix that the BIPs, the number, they cannot allot us in time, because the agency which was involved is also our honorary member. He could not organize in time, so we both were there. I was then as a guest of honor, I was present. Ramnath Pradeep ji was very kind to be there. Although he participated in many, he runs also for about 13 kilometers, he says total. So and we were wearing the T-shirts, which I'm sharing you the photographs tomorrow. And we were wearing the T-shirts where the skin organ donations thing. We were wearing the caps also. I can show you the cap right now. I have this cap. You can see the cap. So this is the cap which was given. You can see it is written skin and this thing here. So this also a news which we wanted to share to you. And tomorrow again there is a Agrawal Sabha here in Mumbai, and because as you all know, tomorrow is the Ram Lala is going to be there in Ayodhya. So tomorrow they have invited me for puja, as well as to distribute the food items and the fruits, etc., prasad, etc., to the Wadia Hospital children's, about 700 patients, and as well as in the Tata Cancer Memorial. So I will be attending tomorrow, and definitely it will be again an organ donation thing, because wherever I am going, I will wear this cap, especially for these types of programs. So the message will go and I will be talking to them. So I request all of our members, if you get any opportunity in your city, wherever you are, in India or abroad, please try to create awareness. Our aim is to save the life. And this is only possible if we will do this wholeheartedly, not only with the meetings only. So these are the informations. So over to you, Rotarian Ritika Gupta. Thank you very much, Mr. Goel.
Well, we have now come to almost the end of the agenda that was set out for the meeting. I would request Dr. Rohan. One more information I would like to give. We must pray and we must thank God. Today, one of our senior member is the Vice President of Rotary Club of Organ Donation International, saved miraculously. There was a major accident. He was coming to Mumbai and he was going from Mathura to Delhi by road. Mr. Rotarian Divpal Sharma and his wife, and he left Mathura at 6 a.m. and about 7 a.m. at Palwal because there was a fog. Conditions are very bad there. But some truck people have rammed his car very badly. The car was totally damaged, but miraculously, I must say that he is also the president of Organ Donation India Foundation North Zone. He was talking about the donation so much and he was involved with me for last 7 years. Might be that one of the reason, but it is Almighty God's wish. He and his wife and the driver was saved. You can say small things have come, although he was hurt on the head also. He's taking rest. So this information also I want to give. We must thank the God, Almighty God, to save one of our very valuable member. Although all our members are valuable, but he's especially because he's involved for last 7 years for this organ donation work. So thank you. Over to you. Thank you very much for sharing. I now request Dr. Rohan Monis to please give a vote of thanks. 1 minute, Rotarian Ritika ji. Yes, please. I've been raising my fingers since quite some time, but I'm so sorry. Didn't notice. Sorry. Please go the ahead. sorry, it's all right. I just wanted to know about the BP device which can be inserted into the near the kidneys. Is it available in India right now? No, it's not available. Yeah, because it is just one surgery took place, and although it got the FDA approval, but it is still not that much common. That's why Rotarian Dipan Shah says that he will be trying to call the transplant surgeon. Once he will explain or she will explain, then only we will think. But in India, it is not available. Even in USA, only one surgery took place. So it is still in a preliminary stage. Okay, okay, right. Thank you. Thank you. Now, please, we can proceed for the vote of thanks. Thank you, Giriji. Good evening, everybody. At the outset, I would like to really thank our Rotarians, Ratanji and Rupaji, for sharing their inspiring story. Yes, it's very scary, and he's beautifully illustrated what has happened, what was the mental issues, physical issues, emotional issues, and how all the family got in together, and how this forum and today he's become an advocate for organ donation, and I was really amazed listening to stories about transplant games internationally, getting these things done and hitting on the Guinness World Record books. Thank you so much, sir, and please continue doing your great and amazing work. And at the outset, yes, I would like to thank all of you for taking your time. We've had a very good attendance, like our president has mentioned, and I think we should not forget the next meeting because we're having a very interesting speaker coming for the next meeting, and wish everybody having a great week ahead. Thank you, Ritika. Thank you very much, Dr. Rohan Monis. The meeting is adjourned. Meeting is adjourned. Thank you. Bye-bye. Good night. Thank you. Good night. Bye. Good night.